नमस्कार, बौछार में आज आपका स्वागत है और यह कार्यक्रम पोएट्री सेंटर सैन होसे द्वारा आयोजित है। और आज हम बात करेंगे समय यानी कि वक्त यानी कि टाइम की। वक्त की मार, समय का फेर, झक मारना, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। वक्त किसका हुआ है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम फ्लाइज, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. In physics, time is also a dimension, it only increases. एंड ये भी कहा है कि मैं कोई गया वक्त तो हूं नहीं जो लौट कर फिर ना आ सकूं, और नथिंग एल्स देन अपना टाइम आएगा। तो इन सब में हमने सुना कि जो लोग टाइम के बारे में या समय के बारे में या वक्त के बारे में कह चुके हैं वो क्या कह चुके थे, और वक्त समय किस तरह से हम सबको अ, अपनी चपेट में लेता है, या कह लें कि एक जस्टिस सिस्टम है, और एक चुपचाप रहने वाला साइलेंट, पर अगर उसको मेटाफराइज करें, मेटाफर दे तो एक साइलेंट ऑडियंस है, साइलेंट जज है। तो आइए आज हमारे साथ जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि वो लोग समय के बारे में क्या सोचते हैं। और हमारे आज इसके कार्यक्रम के में हैं लिटा कर्थ, नौशा असरार, वीना विज, आलोक खरे, शाश्वती दास, और आपकी होस्ट मैं अंशु जौहरी, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट पॉपी चरनालिया। तो लिटा हमारी पहली जो रीडर है वो है लिटा कर्थ। She has done an MFA from Rainier. Rita, please correct me if I have this something from what you gave me earlier. And she has been nominated for Pushcart Prizes and Best of the Night awards. Her creative nonfiction won an award from Lunch Ticket. She co-founded a literary reading series called Flash Fiction Forum, and she writes both poems and fiction. Very welcome to Bochar, Lita. How are you doing this morning? I'm great. Good to see you all. Thank you for your invitation to read and be part of this event today. So I see that Lita, your website is flashfictionforum.com. So you have submission calls off and on. I think we start in January, do we? For Flash Fiction? Yes. We're full for January, but we can look ahead to March. Okay, good. So yeah, please, if you have any flash fictions or narrative poems, please feel free to send them to Flash Fiction Forum. So Lita, what do you think about time? Well, I thought of a little joke about time. Time waits for no man and very few women. But so I brought with me two poems today. One is about the time that a lot of people celebrate Christmas. And since I live in San Jose, I wrote a poem about Christmas in Cesar Chavez Park. Maybe some of you have been to Christmas in the Park downtown. Should I read that one first? I would say, why don't you read the one which is associated with time first, and then we can go on Christmas in the Park. Okay. So this one is about the passage of time and how we age. It's called Recurring Questions. Can someone tell me the difference between age and beauty? I seem to have forgotten. Could anyone tell me the difference between age and beauty? Oh, did I ask that already? Could someone, anyone, please kindly explain the difference between aging and dying, between dying and beauty, between dying and beauty and forgetting? Wow. Could someone please tell me now? This time I won't forget. Very nice. Thank you. And next poem, that's very nice. Okay. That the difference between the difference between
dying and beauty and forgetting and aging. So I really like how you sort of brought them in perspective with respect to each other. Pretty cool. Thank you. And this one, I guess it's really about recurring time. You know, all holidays mark time in a certain way. Mhm. So this one, downtown, the homeless men who usually fill the benches are somewhere else. The Mhm. grass of Cesar Chavez Park is, quote, snow for the season, Yes. cotton batting, gritty gray, nearly Midwestern from a distance, sunken dense as if from weeks of car exhaust and spinning tires. The snow machines are on tonight, puffs that children run to catch in gloveless hands. The decorated train goes round and round, carrying candy canes. 4-H clubs, restaurants, daycare centers, and churches built a forest of Christmas trees, dressed in polar bears made from soda cans, plaster cupcakes, paper stars, glittering CDs. Yes. Oh, A wow. key attraction, the Sugar Plum Fairy rises from a giant gift box. The central tree flings red to blue to green light, buildings set up around the park, sawmill, schoolhouse, candy store, and choir, jerk to life, move their animatronic heads, dipping chocolates, singing ditties. Parents snap photos, smiling, calling in myriad accents, proudly holding plastic Rudolphs, munching churros, lumpia, kettle corn, a little free event for everyone, a little light in the darkness. Mhm. Wow. Yeah, Very nice. very nice, very nice. I mean, it's just so, it just came alive in my mind, and the how you have captured that particular moment of time, in a very descriptive way, and it was like I was there. So we in San Jose, we have a tradition. We have something called Christmas in the Park every, I think, starts from late November until the whole of December, and it's a very vibrant and lively place. I'm not sure are they doing it this year also though, but all of us, we look forward to it during holiday season. Thank you, Lita, for bringing Christmas to the park at Berkshire. Thank you. सो थैंक यू लीटा। और अब हमारे साथ हैं नौशा असरार जी, जो भारत में गया बिहार से हैं, और ये he works for promotion of science, Indian languages and culture, and he works as a senior material scientist and manager material support and failure analysis in Schlumberger, which is the world's largest oil exploration company. He has published Urdu and Hindi articles in newspaper and magazines of India, Ispat Bharati Gunjan and USA Gunjan, और इनके बहुत सारे प्रेजेंटेशंस यूट्यूब पर मौजूद हैं, और इनकी कंपाइलेशन और कलेक्शन की एक सीडी है जिसका नाम है बात खुशबू सी, और इनकी किताब का नाम है दिल से दिल तक। असरार जी, आप बताएंगे कि आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? जी, मैं ह्यूस्टन से ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड नमस्कार, good morning to everybody. In the beginning, I will speak a little bit in English, then I will come to my Hindustani language. Thank you very much for inviting, and it My was very pleasure. pleasant to listen Lita, the two poems, which was very pretty poems and meaningful to me, of course. The topic I liked very much about time. So before I recite my poem, I will share briefly about my definition and my experience of time. When I was doing master's, I was in a seminar library of my department of chemistry, and I was looking for a book, and then I found a book. It was written by some William Moore or Anthony Moore, I don't remember, but Moore. And it was a voluminous book of thousands of pages, one volume. And there were at least 5 or 6 volumes
written by one author. Hmm. Then I started thinking one thing, that all the time we complain about time, that we do not have time. We are so busy, there are so many work, I'm not able to reply letter, which was at that time, there was no email system, there was not much telephone popular in India. Mhm. So we used to communicate with our family, with our parents, with the handwritten letters. Letters, yes. So I was not able to reply my parents. They were always complaining. And I used to say, oh, I am very busy. There are so many homeworks and वक्त exams. नहीं है. So then I started thinking for a moment that how come this guy has written 6 or 7 volumes of book? He was having the same 24 hours day. He must be having a wife. He Yeah. must be having children. He used to go bathroom. He had to pass exams. He must have passed through a test and all these things. He must be going for shopping. He must be enjoying attending festivals, ceremonies. How come he wrote that many books? So that was in my mind all the time, how they are doing this. Then for PhD, I went to Moscow. And in Moscow State University, when I started learning about Lenin, I realized that Lenin has not written books, but he has written a library, hundreds of books, voluminous books. He was having a family, he was having parents, he was having daughter, he was having son, everything. It was just like me. How did he do this job within the same 24 hours? Right. Then I realized that time is like a rubber pouch. You keep on inserting things in it, it will keep on expanding. If you do not put things over there, it will shrink and look as small. So it is the perception or action of the person, how he is using Yeah. the time, because it is just like a rubber pouch. Right. Second thing which I will share, a very nice hadith quote from Prophet Muhammad. 2 sentences he said about time, and that is the guideline for me. I'm very much inspired by that. He said that if you are planting a tree and you come to know that the doomsday has come, Qayamat aa gayi hai, even then you plant that tree. Hmm. So this gives 2 messages. Number 1, that do not think about that how much time you have to do a good deed, number 1. And second thing, never expect the return or benefit from the deed which you are doing. Yes. So these 2 things are very much inspiring for me about time. अब आइए हमको कविता सुना दें, उसके बाद बिल्कुल, इरशाद. कविता का शीर्षक है, ये हिंदी में है और ज्यादातर शब्द इसका शीर्षक है समय का पहिया. जब रात ने आंचल फैलाया, प्रकृति की सारी रचना सन्नाटे में डूब गई. जब रात ने आंचल फैलाया, प्रकृति की सारी रचना सन्नाटे में डूब गई. पर्वत की ऊंची चोटी, जंगल की गहरी खाई, रात की काली चादर ओढ़े सन्नाटे में सोए हैं. दिन की तेज हवाओं में जो पेड़ों के पत्ते लहराए, तेरे मेरे कदमों ने जो धूल के बादल बिखराए, वो भी चुप हैं, सन्नाटा है, शांत फिजा है. वो भी चुप है, सन्नाटा है, शांत फिजा है. इस गहरे सन्नाटे में तुम कान लगाकर ध्यान से सुनना, क्या कहती है सारी रचना. इस गहरे सन्नाटे में तुम कान लगाकर ध्यान से सुनना, क्या कहती है सारी रचना. सारे मानव पक्षी पशुजन, ताल तलैया वन और उपवन, सबकी हैं लाखों इच्छाएं, और उन इच्छाओं के कारण चारों ओर मचा कोलाहल. और उन इच्छाओं के कारण चारों ओर मचा कोलाहल. कहीं मची है आपाधापी, कहीं मचा है दंगा, लप्पा डग्गी भेंगा मुश्ती, कुश्ती दाव अड़ंगा.
वाह 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 वाह, वाह क्या वाह। बात, इच्छाओं वाह। के फिर से फिर कारण से फिर से फिर से। और उन इच्छाओं के कारण चारों ओर मचा कोलाहल। कहीं मची है आपाधापी, कहीं मचा है दंगा, लप्पा डग्गी धेंगा मुश्ती, कुश्ती दाव अड़ंगा। आहा, लेकिन इन सारी इच्छाओं के पांव के नीचे समय का पहिया घूम रहा है और दिशा निश्चित है। वाह लेकिन इन सारी इच्छाओं के पांव के नीचे समय का पहिया घूम रहा है और दिशा निश्चित है। सारी इच्छाएं क्षण भिंगुर, समय का पहिया क्रूर सत्य है। मन माने या ना माने, समय स्वयं को मनवा लेता है और समय का पहिया धीरे मन माने या ना माने, समय स्वयं को मनवा लेता है। इच्छाओं से मुक्त पथिक दूर कहीं खो जाता है और समय का पहिया धीरे 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 आगे बढ़ जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत कमाल है, बढ़िया। कमाल है सर, क्या बात बहुत ही वाह। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे कमाल। लिखा आपने वो, मैं अभी भी सोच रही हूँ जो एक क्रम में आपने पढ़ा है और जो शब्द चुने हैं एक के बाद एक, बहुत ही मजा आ गया। थैंक यू सो मच। और कोई कविता है? एक और कविता सुन लीजिए, छोटी सी है और वो थोड़ी सी मेरी पर्सनल है, भावुक भी है। और सुनिए, इसमें ये तो हिंदी के शब्द ज्यादा थे और इसमें उर्दू के शब्द ज्यादा हैं। इसलिए कि मैं मानता हूँ कि ये कहना कि उर्दू बहुत सुंदर भाषा है, हिंदी बहुत सुंदर भाषा है। दुनिया की हर भाषा, मैं 5 भाषाओं को जानता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, उसमें बोल सकता हूँ, एवरीथिंग। मेरी अपनी जो फीलिंग है आफ्टर नोइंग सो मेनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की हर भाषा बहुत सुंदर है। सही है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे शब्दों को चुनते हैं। शब्द जो होता है वो नगीने की तरह होता है जो हर अंगूठी में फिट नहीं होगा। ये खास चीज याद रखनी चाहिए कि शब्द जो है वो नगीने की तरह होता है, ना उर्दू का होता है ना हिंदी का होता है। वो डिपेंड करता है जौहरी पर कि वो किस अंगूठी में उसको फिट करता है, कहाँ के लिए वो सुटेबल है, वहीं पर वो दमकेगा। आप बेहतरीन से बेहतरीन हीरा किसी ऐसी जगह पे जड़ दीजिए, वो अजीब सा लगेगा, और सही जगह पे जड़िए तो वो दमकने लगता है। सही बात। अब उर्दू की कविता सुनिए। इसका टॉपिक है, उन्वान है, इसका शीर्षक है जर्द गुलाब। जर्द गुलाम, या गुलाब, पीला गुलाब, अच्छा। येलो रोज। हाँ हाँ हाँ। वक्त गुजरा है गुजरता है गुजर जाएगा, वक्त गुजरा है गुजरता है गुजर जाएगा, और यादों के झरोकों पे सजेंगे कुछ ख्वाब, कुछ हंसी शक्लें, दबी यादें, कोई जर्द गुलाब। और यादों के झरोकों पे सजेंगे कुछ ख्वाब, कुछ हंसी यादें, दबी शक्लें, कोई जर्द गुलाब। दर्द के गर्द में कुछ नक्श नजर आएंगे, जैसे कीचड़ में कंवल, जैसे हो सहरा में गुलाब। दर्द की गर्द में कुछ नक्श नजर आएंगे, जैसे कीचड़ में कंवल, जैसे हो सहरा में गुलाब। जिनकी खुशबू से महकता है चमन आज मेरा, जिनकी खुशबू से महकता है चमन आज मेरा, जिनके रंगों का है ये रंग सुखन आज मेरा, जिनकी शफकत का है मकरूज बदन आज मेरा, शफकत लव, जिनकी शफकत का है मकरूज बदन आज मेरा। खोखली शान मेरी तख्त मेरा ताज मेरा, खोखली शान मेरी तख्त मेरा ताज मेरा। उनकी कुर्बानियां थीं या जुनू दीवाने का, वरना उन्वां भी न होता मेरे अफसाने का। क्या बात है, वाह 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 वाह। उनकी कुर्बानियां थीं या जुनू दीवाने का, वरना उन्वां भी न होता मेरे अफसाने का। क्या बात है। राहबर राहनुमा उंगली बढ़ाता वो हाथ,
राह भर राहनुमा उंगली बढ़ाता वो हाथ, मेरे पढ़ने को दिया रोज जलाता वो हाथ, मेरे तकदीर की तनवीर जगाता वो हाथ, मेरे हाथों को दुआओं को उठाता वो हाथ, क्या बात। हाथ जो अब न मेरे हाथ कभी आएगा, आह, वक्त गुजरा है, गुजर जाएगा। गुजरता है, गुजर जाएगा। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आ गया। गजब वाह, क्या बात। गजब. थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, वाह। Thank I'm you. wondering whether I should read anything beyond this after this. थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। असरार जी, सुबह माशाल्लाह सुबह आपको। आपने मिश्री घोल दी मुंह में, और मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये सुन के, एक नई तरह का एहसास, एक नया पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच हमें अपनी रचनाओं से नवाजने के लिए। बहुत बहुत देखिए, मैंने एक सेंटेंस में हिंदी उर्दू दोनों यूज किया। रचनाओं से नवाजने का ऐसा ही है, यही हाँ। ये आप कुछ भी बोले होगा यही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो अगर हमारे पास समय होगा तो हम आपके पास फिर से रिक्वेस्ट करेंगे करने के लिए। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी वीना विज जी को। वीना जी, वीना जी जो है वो कल, वीना जी हैं? यस, शी इज राइट। वीना जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस, ठीक है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत वीना जी। वीना, तो वीना विज जो है वो भारत से यहाँ पर अपने बेटे के पास और बेटी के पास आई हुई हैं। तो उनकी वे कलाकार, कवयित्री और साहित्यकार हैं। उनकी प्रकाशित कृतियों में 3 पोएट्री कलेक्शन और 3 कहानी संग्रह हैं, और काव्य संग्रह हैं सन्नाटों के पहरेदार, कदम जिंदगी के, बगीचों से झांकती धूप, और कहानी संग्रह है मोह के धागे, पिघलती शिला और तुरपाई तथा अन्य कहानियां। और इनकी कुछ कहानियां पंजाबी सूफी मंच द्वारा उर्दू में भी प्रकाशित हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत वीना जी, और हम आपकी रचनाएं सुनने को उत्सुक हैं। थैंक यू। आपने बुलाया और हम चले आए। तो देखिए जी, हाँ, यहाँ पे जान हथेली पे नहीं लाना पड़ा आपको। जान हथेली पे नहीं लेके बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया करम आपका। हाँ, और सबको नमस्कार करती हूँ। इसरार जी ने भी बहुत अच्छा सुनाया, लीता का भी सुना, मजा आ गया। उर्दू भी मुझे पसंद है बहुत। और समय के ऊपर, वक्त के ऊपर या लम्हों के ऊपर कुछ भी जो कुछ लिखा है आपको सुनाऊंगी, क्योंकि वक्त बांधने की जहमत में ताउम्र लगे रहे, वक्त बांधने की जहमत में ताउम्र लगे रहे, बेलगाम उम्र की ढलान से ना जाने कब जिंदगी ही फिसल गई। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। बेलगाम उम्र की ढलान से ना जाने कब जिंदगी ही फिसल गई। ये वक्त जो है, इस वक्त का तो क्या कहना है, उस वक्त के ऊपर ही कुछ सुनाऊंगी, ज्यादा बातें नहीं करूंगी कि सबने सुनाने हैं। जी जी, ठीक है ना, नहीं तो अफसाने तो बहुत हैं। तो आपको वक्त के ऊपर एक कविता सुनाती हूँ पहले। तो वक्त, उसका टाइटल है वक्त। वक्त बीत जाता है, वक्त बीत जाता है, मरता थोड़े ही है। वक्त बीत जाता है, मरता थोड़े ही है। रुबाइयां उभरती हैं ज्वार भाटे सी, किनारों से टकरा टकरा कर नाकाम लौट सागर की गहराइयों में विलीन हो जाती हैं। रुबाइयां उभरती हैं ज्वार भाटे सी, किनारों से टकरा टकरा कर नाकाम लौट सागर की गहराइयों में विलीन हो जाती हैं। मरती नहीं, पुनः नव प्राण ले वक्त के साथ बढ़ती हैं। मरती नहीं, पुनः नव प्राण ले वक्त के साथ बढ़ती हैं। वक्त की दुहाई दे देकर उम्र बढ़ती जाती है, वक्त की दुहाई दे देकर उम्र बढ़ती जाती है।
गीतों की सृजना ने वक्त को कई बार थामा। Mhm. एक गीत लिखे जाते हैं ना, तो गीतों की सृजना ने वक्त को कई बार थामा, गजलों की मिठास ने वक्त को बांधे भी रखा। ठहर जाता है वक्त जब गजलें सुनाता है कोई, तो Wow. गजलों की मिठास ने वक्त को बांधे भी रखा। हर जाई है ये, हर Mhm. जाई है ये, निर्मोही है ये, बांधे ना बंधा। हर जाई है ये, थामे ना थमा, निर्मोही है ये, बांधे ना बंधा। रेत सा मुट्ठी से फिसल फिसल जाता ही रहा, रेत सा मुट्ठी से फिसल फिसल जाता ही रहा। वक्त बीत जाता है, मरता थोड़ा ही है, वक्त बीत जाता है, मरता थोड़ा ही है। साजन की जुदाई का वक्त ना ठहरा, साजन की जुदाई का वक्त ना ठहरा, दुल्हन की विदाई का वक्त ना ठहरा, सुहाग रात की बाहों में वक्त ना थमा। Wow. सुहाग रात की बाहों में वक्त ना थमा, निष्प्राण शरीर को त्याग, आत्मा के जाने का वक्त ना बंधा। निष्प्राण शरीर को त्याग, आत्मा के जाने का वक्त ना थमा। वक्त ने मरना थोड़े ही ना है, वक्त ने मरना थोड़े ही ना है, वक्त ने तो बीत जाना है, वक्त ने तो बीत जाना है। यादों का अंबर पीछे छोड़कर, यादों का अंबर पीछे छोड़कर, न थमना न रुकना, न बंधना न ठहरना है। न थमना न रुकना, न बंधना न ठहरना है, वक्त ने तो हर हाल में बीत ही जाना है, वक्त ने तो हर हाल में बीत ही जाना है। वाह, वेरी नाइस। सो ये एक वक्त की दुहाई आपको सुना दी मैंने और अब एक मैं आपको सुनाती हूँ वो लम्हे, जिंदगी के लम्हे, वक्त के लम्हे जिनको हम चुराते रहते हैं। लम्हे, तो लम्हों से गुजारिश है ठहर जाएं। एक शेर अर्ज करती हूँ, लम्हों से गुजारिश है ठहर जाएं, चिरागे वफा आंधियों से गुजर रहा है। वाह, लम्हों से गुजारिश है ठहर जाएं, चिरागे वफा आंधियों से गुजर रहा है। सो एक लम्हे के लिए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, उसका शीर्षक है वो लम्हे। जिंदगी से लम्हे चुरा लॉकर में सहेजती रही, जिंदगी से लम्हे चुरा लॉकर में सहेजती रही, फुर्सत से खर्चूंगी बस यही सोचती रही, फुर्सत से खर्चूंगी बस यही सोचती रही। उधरती रही जब जेब की सीन, उधरती रही जब जेब की सीन, करती रही तुरपाई। अच्छा। उधरती रही जब जेब की सीन, करती रही तुरपाई, फिसलती रही खुशियां, करती रही भरपाई। वाह, वाह, वाह। अच्छा। फिसलती रही खुशियां, करती रही भरपाई। एक दिन फुर्सत जो पाई, एक दिन फुर्सत जो पाई, सोचा स्वयं को आज रिझाऊं, स्वयं को आज रिझाऊं, बरसों से जो सहेज रखे वे लम्हे खर्च कराऊं, बरसों से जो सहेज रखे वो लम्हे खर्च कराऊं। खोला लॉकर लम्हे ना थे, खोला लॉकर लम्हे ना थे, जाने कहाँ रीत गए, जाने कहाँ रीत गए, मैंने तो खर्चे नहीं, जाने कैसे बीत गए, मैंने तो खर्चे नहीं, जाने कैसे बीत गए। अब जाकर फुर्सत मिली थी, अब जाकर फुर्सत मिली थी, सोचा खुद से ही कुछ मिलाऊं। अब जाके फुर्सत मिली थी, सोचा खुद से ही मिलाऊं। आईने में देखा जो, आईने में देखा जो पहचान ही ना पाऊं, आईने में देखा जो पहचान ही ना पाऊं। ध्यान से देखा बालों पे चांदी सी चढ़ी थी, ध्यान से देखा बालों पे चांदी सी चढ़ी थी, लगती थी कुछ मुझ जैसी,
लगती थी कुछ मुझ जैसी, जाने कौन खड़ी थी, हम्म, जाने कौन खड़ी थी, जाने कौन खड़ी थी। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही हिट करने वाली। अभी अगर समय हो तो फिर एक और सुना दूं। हाँ, सुना दीजिए। छोटी सी है बस। अगर आप समय, समय का रिपीट। अभाव, हाँ, समय छोटी का। सी। हाँ, थोड़ा सा अगर पंक्तियों को रिपीट ना करें तो मेरे ख्याल से सुना सकती और हैं। जल्दी हो जाएगा। ओके, हाँ ठीक हाँ। है, बहुत अच्छे। तो वो कहते हैं ना, तमाम उम्र की जद्दोजहद में, तमाम उम्र की जद्दोजहद में हाथ आई शिकन और झुर्रियों, झुर्रियों की सौगात। हाथ आई चिकन और झुर्रियों की सौगात। सो समय का अभाव ही रहता है। सो अनजाने भोले बचपन ने कब ली अंगड़ाई, यौवन की बाहों में भर चटकी कली मुस्काई। समय का अभाव हर पल को नकारता सा, आसमां को छूने को लालायत। समय का अभाव हर पल को नकारता सा, आसमां को छूने को लालायत। कर्मठता की गांठ बांध उस पर सिर धरे, स्वप्निल संसार में विभोर। हरितिमा समेत पुष्प का रसा स्वादन पाने का इच्छित, कब कांटों से क्षत विक्षत हो, धूली पर पड़ा था अक्षत सेज पर। हर कहीं था समय अभाव, हर कहीं था समय का अभाव। करीब थी ढलते जीवन की सांझ, करीब थी ढलते जीवन की सांझ। कर्मठ सजग होने की चाहत थी अंतिम, खाली हाथों से फिसल रहा, खाली हाथों से फिसल रहा। सबने पाया समय का अभाव, सबने पाया समय का अभाव। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार वीना जी, बहुत सुंदर। और अब बस, मैं एक छोटा सा एक्सर्प्ट पढ़ूंगी समय के ऊपर। अदर एग्जाम्पल है, ये मेरी किताब अदृश्य किनारा की टाइटल स्टोरी अदृश्य किनारा से ही है। और थोड़ा सा एक्सर्प्ट है उसका, अदर एक पैराग्राफ है। अ, आज से ठीक 5 महीने पहले मैं गैलेक्टिक टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग 14 के क्यूब में बैठा था, जो चारों तरफ से हरी धूप पर शान से खड़े पाम और यूकेलिप्टस से घिरी हुई थी, जब मेरे मैनेजर ने क्यूब की दीवार पर एक धीमी सी दस्तक दी थी और कहा था कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। फिर उसने मुझे रिफ के बारे में बताया था। रिफ यानी कि रिडक्शन इन फोर्स, यानी कि नौकरी से छुट्टी। रिसर्च बजट घट रहे थे, इंडस्ट्री एक नाजुक आर्थिक दौर से गुजर रही थी और मुझे निकालना उसकी मजबूरी थी। मैंने क्यूब में पड़ा अपना सामान इकट्ठा किया था, कुछ किताबें, मैग्नोलिया का लहलहाता गमला, कुछ नोटबुक्स और कैनेडियन रॉकी की पर्वत श्रृंखला का पोस्टर। बहुत छोटे छोटे कागज के पुर्जे थे जिन पर किसी समय में कुछ जरूरी लिखा था, और वे सब एक मिनट में कचड़े के ढेर में परिवर्तित हो गए थे। समय के एक खाके में महत्वपूर्ण होना और दूसरे में महत्वहीन हो जाना जैसे जीवन का अनिवार्य सच था। हाँ, हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज की एक उम्र होती है और हर उम्र के सपने अपने सच होते हैं। वर्तमान का एक सच, वर्तमान का एक सच अतीत के सच को निरर्थक बना सकता है और उस पल से उसके सच को नहीं छीन सकता। और इन पलों के ये जो सच हम में भिन्न भिन्न भावनाओं का उद्वेलन करते हैं। किसी पल का एक सच और उस सच से जुड़ी उसकी भावना। मुझे लगता है कि जिंदगी यदि इन क्रमवार पलों के सिलसिलों में न बंधी होती और हमें इन सभी पलों के सचों को एक साथ एक पल में जीना होता, तो संभवतः हम में एक भावनात्मक शून्य की सृष्टि होती। थैंक यू, दैट्स इट। बहुत ये अच्छा, सही बहुत बात है। अच्छा समय को लिया बहुत, आपने। ये ठीक है, sum of all vectors is zero. जीरो, यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा है कि हमको कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी हम हालात से भर जाते हैं,
अगर हमको ये सब कुछ एक साथ जीना होता है, तो जब लोग कहते हैं कि मुझे दुख ज्यादा मिला या मुझे सुख ज्यादा मिला, मुझे लगता है हम बुरी समय को, बुरी चीजों को, या जो हमारे साथ गलत घटा है, अच्छा नहीं घटा है, उनको हम ज्यादा याद रखते हैं बजाय जो अच्छी चीजें हमारे साथ हुई हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी पॉपी चरनालिया को कि वो अपनी कविताएं पढ़ें। पॉपी, Poppy, are you there? Yeah, I'm here. I can see you now. Hi. Hello everybody. Good afternoon. Hello. Namaste. नमस्ते। मुझे लगता है यहाँ पोएट्स नहीं है, साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं आप लोगों के। And I think that those are very closely connected actually. Yes. Some brilliant thoughts on time. बहुत खूबसूरत। मैंने यहाँ समय पे लिखा है, लेकिन समय के एक पल पे लिखा है, और ये कविता मैं अपनी पढ़ना चाहूंगी। मैंने लिखा, पल एक ही है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने लिखा कि समय, इस समय तो मैं अपने बच्चों के नन्हे शरीर को स्नान कराने बैठी हूँ। निस्वाद बुलबुले उनकी जिह्वा पर मीठी अटखेली करते हैं। निस्वाद बुलबुले उनकी जिह्वा पर मीठी अटखेली करते हैं। स्वयं को सुख की पराकाष्ठा पर देख मैं सोचती हूँ, इस समय का, इस कथा का न आदि न मध्य न अंत है। ये सुख की मरीचिका नहीं, ये जलमय क्षण यहीं, ये जलमय क्षण यहीं नितांत है। वाह, नितांत है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बालक, शुक्रिया। मेरे बालकों का होना ये सत्य स्वयं में इस समय पूर्ण है। भविष्य की अभीप्सा से अविचलित, समय परिभाषा के विपरीत, ये समय अचल है, जड़ है। समय की परिभाषा के विपरीत ये समय अचल है, जड़ है। लाइक टाइम इज नॉट मूविंग इन दिस मोमेंट। न किसी गंतव्य पे होने की है देरी, न किसी गंतव्य पे होने की है देरी, न भोर सांझ की निरर्थक फेरी, न भोर सांझ की निरर्थक फेरी। मेरे प्रेम ने मुष्टि में, मेरे प्रेम ने मुष्टि में समय थाम लिया है। मेरे प्रेम ने मुष्टि में समय थाम लिया है। मैंने इस समय को अब एक क्षण नाम दिया है। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया। मैंने समय को अब एक क्षण नाम दिया है। समय की तटस्थता को निरस्त्र कर, समय की तटस्थता को निरस्त्र कर प्रेम प्रवाह में डुबो दिया है। वो कहते हैं ना कि टाइम इज स्टोइक, समय को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया है और उसको मैंने अपने प्रेम में डुबो दिया है। मैं यहाँ अभी कृतार्थ हूँ, मैं यहाँ अभी कृतार्थ हूँ। मन सैंधव का गंतव्य यही है। मात्र एक श्वास है, श्वासों का चलन नहीं है। मात्र एक श्वास है, श्वासों का चलन नहीं है। अतृप्त आकांक्षाओं से भिन्न, अतृप्त आकांक्षाओं से भिन्न, ये प्रत्यंचा ही बाण का लक्ष्य अंत है। आहा, क्या बात है। प्रत्यंचा ही लक्ष्य, बाण, हाँ। ये प्रत्यंचा ही बाण का लक्ष्य अंत है। तीन हृदय चलायमान है। तो मेरे जुड़वा बच्चे हैं, तो एक समय में मुझे याद है जब मेरे पेट में थे तो मैं सोचती थी कि इस समय 3 धड़कनें मेरे अंदर हैं। मेरे भी। Exactly, Anshu, you know what I'm talking about. 3 हृदय चलायमान है, पानी की ध्वनि है। तो कल पानी बह रहा था क्योंकि मैं बच्चों को नहला रही थी। 3 हृदय चलायमान है, पानी की ध्वनि है, फिर भी मेरे इन 2 अंगों के साथ यहाँ शून्य एकांत है। फिर भी मेरे इन 2 अंगों के साथ यहाँ शून्य एकांत है। मेरे 2 बालक इस पल जल से खेलते हैं। बस ये क्षण जो शांत है, मेरे मातृत्व का सारांश है। बस ये क्षण शांत है मेरे। और मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है और मैं अपनी पोएट्री, और मैं आर्टिस्ट भी हूँ, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू फंड रेजिंग करती हूँ।
तो ये कविता तो मैंने लिखी थी जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, पर बाद में मुझे पता चला कि उसे ऑटिज्म है। और मैं सोचती हूँ कि अभी भी मेरे अंदर ये भाव है कि आज वो खुश है, आज का दिन अच्छा है, मेरी गोदी में खेल रहा है, ये मेरे लिए बहुत है। आगे जाके क्या होगा वो मैं उसकी चिंता नहीं करती। तो समय मेरे लिए इस समय है, समय इस समय। अब एक बात बोलूंगी आपके लिए कि आपका ये जो आपकी जो कविता है ये गद्य गीत है जी इसे हम गद्य गीत कहते हैं। तो जी आपने प्यारे प्यारे शब्द उठाए हैं हिंदी से और उन्हें प्रयोग में लाई हैं, तो इसे ये गद्य गीत बनाया है आपने। तो ये शुक्रिया बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई है। वीना जी, शुक्रिया। हाँ। अच्छा, मैंने कुछ दो पंक्तियों में कुछ गजल एक लिखी है, माजी पे ख्याल। मैंने कुछ इसका टाइटल रखा कि माजी पे कुछ ख्याल। तो मैंने लिखा कि इस कदर बाहर दरवाजा जो खोल छोड़ा है, इस कदर बाहर दरवाजा जो खोल छोड़ा है, न इनके साथ वो हादसा अभी हुआ होगा, न इनके साथ वो हादसा अभी हुआ होगा। हम वो शख्स थे ही नहीं, हम वो शख्स थे ही नहीं, तेरा दिल अपने ही किसी ख्याल पे आया हुआ होगा। हम वो शख्स थे ही नहीं, तेरा दिल अपने ही किसी ख्याल पे आया हुआ होगा। कौन कमबख्त, ये देखिए जहां लिखने वाले सब यहाँ बैठे हैं, इनके आप सुने कि कौन कमबख्त अपनी मर्जी से लिखता है। लिखता है भाई, ये तो नहीं है। कौन कमबख्त, इसको सुने, कौन कमबख्त अपनी मर्जी से लिखता है, इस शायर के साथ वही हादसा हुआ होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। इस शायर के साथ वही हादसा हुआ होगा। हमें मर के बेचैनी ये, हमें मर के, इसे गौर से सुने, हमें मर के बेचैनी ये कि मौत पे मेरी हो ना हो जलसा हुआ होगा। क्या बात। कि मौत पे मेरी हो ना हो जलसा हुआ होगा। और फिर एक छोटी सी गजल है, वो मैं सुनाऊंगी कि तेरी याद पे लिखी है कि तेरी अधूरी याद, तेरी अधूरी। तो मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो कई बार शब्दों से पेंटिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, और कई बार पेंटिंग से पोएट्री बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी वही कोशिश है। इसको सुना है कि तेरी अधूरी याद कांच के डूबते चरागों में झिलमिलाते मकान सी। तेरी अधूरी याद कांच के डूबते चरागों में झिलमिलाते मकान सी। आहट तेरी सीने में इस कदर, आहट तेरी सीने में इस कदर, हजारों कबूतरों की नीची उड़ान सी। वाह वाह वाह, शुक्रिया। हजारों कबूतरों की नीची उड़ान सी, और इन फूलों के बेवक्त खिलने की कोशिश, और इन फूलों के बेवक्त खिलने की कोशिश। अब यहाँ क्लाइमेट चेंज से देखिए, कई बार आप नोटिस करेंगे कि गलत चीज गलत वक्त पे उग रही होती है, या पेड़ भी कंफ्यूज रहता है कि क्या वेदर है, स्पेशली जहाँ मैं रहती हूँ, ये बॉस्टन में। तो मैंने लिखा कि फूलों के बेवक्त खिलने की कोशिश, अचानक उस अजनबी के, अचानक फिर उस अजनबी के एहसान सी, अचानक फिर उस अजनबी के एहसान सी। और नदी का भीगी लकड़ी के तख्तों से टकराना, नदी का भीगी लकड़ी के तख्तों से टकराना, इस इलाके में मेरी वो पुरानी जान पहचान सी, इस इलाके में मेरी वो पुरानी जान पहचान सी। और तेरी याद से यूं सांसें उखड़ती हैं, और तेरी याद से यूं सांसें उखड़ती हैं, जैसे माँ बच्चे को खोजती हो परेशान सी। माँ बच्चे को खोजती हो परेशान सी। और एक आखिरी शेर है कि इन्हें यकीन नहीं कि जिस्म बेजान है, इन्हें यकीन नहीं कि ये जिस्म बेजान है, इन्हें यकीन नहीं कि ये जिस्म बेजान है, ये आंखें अब भी खुली हैं हैरान सी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस, वाह, अच्छी मजा आ बात गया। है कि आप दोनों भाषाओं पे बड़ा कमांड हासिल रखते हैं पॉपी जी के। मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ और नौशा जी। उर्दू आप में भी आपने बहुत अच्छा। दो, आई थिंक वो आप जो लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी वो,
सब भाषाओं में बहुत कुछ है सीखने के लिए। बहुत सुंदरता है, बहुत मिठास है, समझने का चाहिए बस। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ओके, अब मैं हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, सो आई जस्ट रश अप। आलोक जी आइए, आपकी रचनाएं सुनी जाए। अच्छा, आप मुझे धन्यवाद। पहले बता दें कि आप आपसे शायद इंट्रो मेरे को याद नहीं रहा लेना, पर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कुपर्टिनो कैलिफोर्निया से है, ये मुझे पता है, और आप आप स्टार्टअप, you're a co-founder, I think. I'm not sure. नहीं, अब तो कुछ नहीं रहा। अच्छा। मैंने कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स किया हुआ है बहुत पहले 1978 में आईआईटी कानपुर से, और उसके बाद कविता लिखना 2005 से 4 से शुरू किया था, जब हमारे दोस्त के फादर आए थे, मयंक श्रीवास्तव के फादर। वो खुद बहुत अच्छे कवि हैं और उन्होंने ब्लेस किया, पता नहीं क्या हुआ, और मेरे अंदर कविता जग गई और वहां से लिखना शुरू किया। चलिए, सुना जाए। तो ये तो बाकी तो टेक्निकल सफर बहुत लंबा है, कविताओं का सफर जो भी थोड़ा बहुत है उसका एक दो तीन रचनाएं आज आपको सुनाता हूँ। जैसा टाइम होगा कहिए तो एक सुनाऊं, कहिए दो सुनाऊं। नहीं, सुनाइए, आप सुनाइए। और हाँ, अगर कम लगेगा तो मैं बता दूंगी। हाँ, आप बता दीजिए। तो मैं आपको टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम कम। टाइम का कंप्रेशन तो हमेशा हो ही जाता है, और मैं इस जो पहली कविता है वहां से ही उठाना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल आगे पहले लोगों ने कहा कि खासतौर से जब समय जो रुक जाता है, अभी पॉपी ने बताया, और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं इस कविता की थोड़ी बैकग्राउंड दे देता हूँ 4-5-10 सेकंड्स में। वो ये था कि मैं ईस्ट कोस्ट से घर आ रहा था इधर कुपर्टिनो की तरफ, वाज लाइक 20 इयर्स बैक, एंड वो प्लेन उड़ रहा था और चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी थी और हम शायद मिडिल सीट में भी थे, और बादल थे और मूवमेंट का कोई एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रुके हुए हैं, और बड़ी अजीब सी घुटन हो रही थी क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था। इट सीम्स लाइक कि वो वक्त थम गया है और प्लेन वहीं रुका हुआ है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस मोमेंट का मतलब क्या है। तो मैंने ये लिखा, दिमाग में आया कि कुछ इस तरह से सोचो कि तुम हो ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा ही मोमेंट था कि आई वाज इन अ स्टेट की आई वाज नॉट अलाइव इन सम सेंस। कुछ इस तरह से सोचो कि तुम हो ही नहीं, तब ऐसा कुछ लगेगा तूफान ना उठे। उन दोनों हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे। तो तब ऐसा कुछ लगेगा तूफान ना उठेगा, चलती रहेगी दुनिया, कुछ भी तो ना रुकेगा। तुम जितना तेज भागो घर दूर ही लगेगा। तुम जितना तेज भागो घर दूर ही लगेगा, तुम जितना साज साजो स्वर उतना ही सजेगा, तुम इतना कुछ करोगे फिर भी वो कम लगेगा, तुम वक्त से लड़े हो ऐसा वहम लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। ठहरो ठहरो जरा ये सोचो ब्रह्मांड में धरा है। ठहरो जरा ये सोचो ब्रह्मांड में, सोचो तुम हो किसमें, किसने तुम्हें गढ़ा है। क्या बात है। वाह। एक व्याकरण की एक भव्य व्याकरण की आसान सी हो रचना, बादल में जैसे बूंद इतना ही बद समझना। क्या बात है। तो हम लोग कंप्यूटर साइंस में ग्रामर पढ़ते हैं और ग्रामर से लैंग्वेजेस निकालते हैं, जो जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। तो वहां से थॉट आया था कि जो व्याकरण जो भी यूनिवर्स है उसकी एक भव्य व्याकरण की आसान सी हो रचना, बादल में जैसे बूंद इतना ही बस समझना, दिल एक भी न टूटे तुम ऐसा गीत गाना, जो पास तेरे आए उसको है बस लुभाना, कुछ ऐसी तान छेड़ो हो जाए मस्त जमाना, आंखों में यारों सबकी थोड़ी चमक है लाना, ऊर्जा है अपनी सीमित कहता है एक दीवाना, एक सूक्ष्म सी हो रचना इतना ही बस दिखाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। वेरी गुड।
अगली हम आपको सुनाते हैं जो आजकल के क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही बन गई थी, कुछ रिसेंट है। और एक दिन काफी उलझन में हम उठे थे रात में, तो ये लिख डाली कि अब बीजों को भी आग उगलनी होगी। खड़े थे मुद्दतों से जिस दीवार पे हम टिका के अपना वजूद, खड़े थे मुद्दतों से जिस दीवार पे हम टिका के अपना वजूद, आज वो बेबस सी कमजोर नजर आती है। या जिस जमी पे खड़ा था उसका दारोमदार, वो जमी खुद ही सिहर जाती। खड़े थे मुद्दतों से जिस दीवार पे हम टिका के अपना वजूद, आज वो बेबस सी कमजोर नजर आती है। या जमी पे खड़ा था जिसका, या जमी पे खड़ा था उसका दार, या जिस जमी पे खड़ा था उसका दारोमदार, वो जमी खुद ही सिहर जाती है। सियासतों में ही सही आग तो लगनी है और लगनी भी है। सियासतों में ही सही आग तो लगनी है और लगनी भी है। शायद अब बीजों को भी आग उगलनी होगी। जिस एतबार से सवेरा अब तक होता है, जिस एतबार से सवेरा अब तक होता है, उस एतबार की आदत अब बदलनी होगी। क्या बात है, वेरी नाइस। आपकी तीसरी कविता कितनी लंबी है आलोक जी? छोटी है? बस जितनी लंबी अभी ये सुनाई है वो उतनी है, सुना दीजिए। ओके। तो इसमें ये था कि यहाँ वेल्को फैशन पार्क एक मॉल था और वो तोड़ दिया गया। और उस पार्क से हम लोग की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। जब से कुपर्टिनो में आए वहीं जाते थे, पास में ही था। और वो तोड़ दिया गया और उसकी जमीन भी खोद दी गई। तो एक दिन निकले थे तो देखा गायब है। तो उस पे दिमाग में आया कि साहब, और ये बेंगलोर में भी मेरे साथ हादसा हो चुका है, वहां पे भी हमारा घर है। तो वहाँ घर के आसपास के जो लैंडमार्क से सब तोड़ ताड़ दिए गए, वहाँ शीशों की दुकानें बन गई। इस मकान में कोई मकीन नहीं है, इस मकान में कोई मकीन नहीं है। पहले इमारत थी अब जमीन नहीं। वाह वाह। सब्ज बागो बहार और मेला था यहाँ, आज वीरान है ये शाम, ये यकीन नहीं है। तुम क्या सोच के आए थे, यहाँ कुछ भी नहीं। तुम क्या सोच के आए थे, यहाँ कुछ भी नहीं। तुम जैसा जवां या उनसा हसीन नहीं। दिया नहीं जा रहा। हाँ जी, नहीं आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मॉल में बहुत लोग आते थे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। तो तुम क्या सोच के आए थे, यहाँ कुछ भी नहीं। तुम जैसा जवां या उनसा अब हसीन नहीं है। पसंद सबकी बदलती है पर इतनी नहीं, पसंद सबकी बदलती है पर इतनी नहीं। हमारी याद मिटती है, कोई गमगीन नहीं। उठाओ जाम और डुबो दो अपनी सदा, आज सुनने को यहाँ कोई करीम नहीं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शाश्वती को बुलाने के पहले आपकी इसके उस पे मैं अपनी कविता एक छोटी सी सुनाऊंगी। छोटी है कि बड़ी पता नहीं। अब, और इसे मैंने ये तुमसे जुड़े बिना मेरा कविता संग्रह है उससे लिया है कि अब डर नहीं लगता इस बात से कि आवाज गुम हो गई है, शब्द निशब्द हो चले हैं, कि कुछ भी सुन पाने में असमर्थता है और आंखों को रोशनी कुछ चुभ सी रही है। क्योंकि अक्सर लंबी सर्दियों के बाद बंजर सी धरती को चटकते देखा है, क्योंकि अक्सर लंबी सर्दियों के बाद बंजर सी धरती को चटकते देखा है। क्यारियों के सूनेपन में सहस्त्र सुमन और उनमें रंग बिरंगी तितलियों को भटकते देखा है। अब बुरा नहीं लगता कि क्यों कमरों में कुछ कहानियों को बंद कर दिया था। मतलब हम अपने अतीत के कुछ लम्हे उनको कैद कर देते हैं, देखते नहीं है उनकी तरफ। अब बुरा नहीं लगता कि क्यों कमरों में कुछ कहानियों को बंद कर दिया था, कि साकर चढ़ाकर ताले लगा दिए थे और खोई हुई चाबियों को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। वाह। क्योंकि लंबे समय बाद
जंग लगे ताले स्वतः टूट जाते हैं, खंडहर बनती दीवारें खुद कहानी बन जाती हैं, बंद बहुत देर तक कुछ भी नहीं रहता। वाह वाह, हम्म बहुत बढ़िया। बंद बहुत देर तक कुछ भी नहीं रहता, सुलगती सिमटती सांसें सब रुके हुए समय की रवानी बन जाती हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा। और शाश्वती, हमारी अगली कवित्री हैं शाश्वती दास, और ये बौछार में हम हम लोग अक्सर मिलते हैं, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हर एंथुसियाज्म। ये बांग्ला इनकी मूल भाषा है, और शायद ये आप उड़िया, शाश्वती आप हैं? हाँ, हाँ शाश्वती हाँ, हैं। मैं हूँ। आप उड़ीसा से हैं कि मैं आसाम से हूँ। मैं आसाम से में रही हैं, आसामीज हैं, बांग्ला इनकी भाषा है, और ये हिंदी में कविताएं लिखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से शाश्वती। चलिए आपकी कविताएं सुनते हैं। धन्यवाद। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखती हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो the poetry that I'm going to recite is a bit related to time, and what I want to say is kind of how we transform our time with experiences. So it's a way of saying that when with time and experiences, how we change, and initially we feel we have experience of our own self and we feel the self pain, but when we see the universal plane, we don't feel the pain anymore. It's over time how we change with that. So कविता का नाम है अब और तब। जब टूटे रिश्तों की हवा मेरे द्वार पर दस्तक देती है, अब मुझे दर्द नहीं होता। जब खालीपन का बादल मेरे चंद्रमा को ढक लेता है, अब मुझे दर्द नहीं होता। जब अपमान की चुभन मेरी रूह को चीरती है, अब मुझे दर्द नहीं होता। जब मेरी मुशक्कत के गुलशन को एक तूफान लूट लेता है, अब मुझे दर्द नहीं। अब मुझे दर्द होता है जब मेरे दोस्त की आंखों से लहू के अश्क टपकते हैं। अब मुझे दर्द होता है जब एक नन्हे तिफल से उसका बचपन छीना जाता है। अब मुझे दर्द होता है। अब मुझे दर्द होता है जब हजारों मील चलते हैं अजीर अपने घर पहुंचने के लिए। अब मुझे दर्द होता है। अब मुझे दर्द होता है जंग में वो विस्फोट में इंसान की तड़प की चीख सुनकर। हाँ, अब मुझे दर्द होता है उन तमाम वारदातों से जिससे तब मुझे दर्द नहीं होता था। वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। The next one is on memories. So time, समय गुजर जाता है but यादें रह जाती हैं। तो उसी पर ये नेक्स्ट कविता है। याद आती है। याद आती है मुझको कुछ अधूरी सी बातें, कुछ टूटे रिश्ते, कुछ खोई मुलाकातें। याद आती है। याद आते हैं मुझको वो आंसू जो रोए, दिल में दबे वो दर्द सोए। याद आते हैं। तुमको भी क्या याद होंगे वो लम्हे, चंद टूटे वादे, चंद रूठे दिन। याद आते होंगे क्या तुमको भी उमंग भरे वो दिन। दर्द ये पुराना हुआ, बातें भी पुरानी हुई, तेरे मेरे दिल की कहानी भी पुरानी हुई। फिर भी क्यों तन्हा लगे ये जिंदगी तेरे बिन, याद आते हैं न जाने क्यों मुझे बीते हुए वो दिन। आंसू भी आज रुक चुके हैं, मुरझा गए हैं फूल, फिर भी तेरी महक फैलाए मेरे आंगन के दो गुल। दिन ये महीना हुआ, महीने बने साल, मैं भी शायद भूल चुकी हूँ तुम्हारी यादें फिलहाल। फिर भी जाने किसकी राहें देखे मेरी ये दो आंखें, सब कुछ खत्म हुआ फिर भी कुछ तो रह गया। वाह, वेरी ब्यूटीफुल शाश्वती। इस कविता से मुझे ये लग रहा है राइट कि आप हाउ यू try to strive for life when time is against you, and in that time you find a moment of hope, and
यू मे नॉट नो कि वो क्या है जो आप में अभी भी जल रहा है, जो बाकी है, जिसे आप पूरा करने की कोशिश करते हुए समय को झेलने के बाद भी आप आगे के समय से मिलने की तैयारी कर रही हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। या और अब हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये है कि ये दिसंबर का महीना है, 2021 का आखिरी महीना और 2021 का आखिरी बौछार। हम जनवरी में फिर से मिलेंगे और हमारा ये कार्यक्रम थीम बेस्ड या विषय पर आधारित कार्यक्रम है और हम हर महीने अलग अलग थीम के साथ मिलते हैं। तो आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मेरी एक कविता बीते हुए साल के लिए, ये भी तुमसे जुड़े बिना से ली है मैंने, कब मेरा कविता संग्रह। नया साल, कुछ बूंदें, कुछ प्यास, कुछ बाधाएं, कुछ प्रयास, कुछ ताजी नींदें, कुछ उनमें ताजे सपने छू लेने का आभास, कुछ बचे खुचे दिनचर्या के पल, कुछ उनको पूरा पूरा जीती एक निश्वास। एक और बरस बीत कर बंद होने चला है, एक और बरस बीत कर बंद होने चला है। पिछले बरस कुछ बीज, कुछ बादल मुट्ठी में लिए मिला था। थैंक यू। तो इस रचना के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आशा है जनवरी में आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हैव अ सेफ रेस्ट ऑफ द 2021 एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल मुबारक हो। पोएट्री सेंटर सैन होजे की तरफ से मैं अंशु जौहरी आज आपसे विदा लेती हूँ अगले महीने तक के लिए। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। Very well done, Anshu. I'm really proud of you. Very well. Thank you. बहुत अच्छा